Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to our channel Filter Z. In this video we will discuss about various human diseases. This video is basically for class 12th student and for students of Bachelor of Science, but it will also helpful for other students who are interested in this topic. I will try to explain in easy language in both Hindi and English language, and also give you proper notes, so you don't need to go for any books for notes. And if you need these notes in PDF form, then let me know in comment section. I will give you the link of PDF. First we will see what we are going to cover in this lecture. Content. First, introduction. Second, terminology. Third, diseases. Fourth, chart. Fifth, summary. In introduction, I will give you a brief introduction of human disease. Second, terminology. In terminology, I will tell you some basic terms which will help you to understand diseases in proper way. Basic terms such as pathogen, vector, host, its types, etc. These terms are very important to understand the concept of human health and disease. Third, diseases. There are so many diseases or disorders which affects human life, but I will cover only those diseases which are important for your exam, for class 12th students and for students of Bachelor of Science. I will cover disease such as typhoid, tuberculosis, swine flu, ringworm, etc. Fourth, chart. In this chart, 4 to 5 diseases, their pathogen, mode of transmission, symptoms are arranged in a tabular form, so it will help you to understand the differences between these diseases. 5. Summary. At the end of this series, I will give you a brief summary of these diseases, all these diseases. Diseases are caused by different microbes. Bacterial disease which are caused by bacteria. An example, typhoid, tuberculosis, pneumonia, and others are viral disease which are caused by virus. Swine flu, common cold, these are caused by virus like this, protozoan, helminths, fungal disease. Now comes to introduction. Disease. Any harmful deviation from normal structural or functional state of body that causes discomfort or disability. Another definition of disease is malfunctioning of body with specific symptoms is called disease. Disease को हम हिंदी में रोग कहते हैं. Diseases can be grouped into two types. First, infectious disease. Second, non-infectious disease. First, infectious disease. Disease which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. Example, AIDS. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिज़ीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे में फैलती है. जैसे एग्जांपल हो गया एड्स. सेकंड है हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो फैलती नहीं है, एक पर्सन से दूसरे में नहीं फैलती है. अगर किसी एक पर्सन में है तो वो उसी में रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी. एग्जांपल है कैंसर. कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहते हैं. इट इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन सर्टेन टिश्यू और ऑर्गन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ masses ऑफ सेल्स विच इज़ कॉल्ड ट्यूमर. कैंसर में जो सेल डिवीज़न होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो उससे कई masses ऑफ सेल्स बनते हैं जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं. ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा होता है बिनाइन ट्यूमर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा. Now, fourth is terminology. In terminology, there are 4 terms. First, pathogen. Second, vector. Third, parasite. Fourth, host. First, pathogen. Pathogen are disease-causing organism. Example, plasmodium, which is a malarial pathogen. बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है.
Second is vector, living organisms that transmit infectious pathogens between humans और from animals to humans. वेक्टर ही एक कैरियर का काम करता है. वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी इन्फेक्शियस पैथोजन को इंसानों के बीच में फैलाता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या जानवरों में से इंसानों में. उसे बोलते हैं वेक्टर, जो इनको लेके आता है, इन पैथोजन को लेके आता है इंसानों से जानवरों से इंसानों में या इंसानों के बीच में इसको फैलाता है. ये एक गाड़ी की तरह काम करता है. पैथोजन, ये एक पैथोजन को एक पर्सन से उठा के दूसरे पर्सन में ले जाता है, तो ये काम होता है वेक्टर का. एग्जाम्पल मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई. मॉस्किटो जो मलेरिया का पैथोजन वो लेके आता है, येलो फीवर का, डेंगू का. हाउस फ्लाई जो होती है ये टाइफाइड फीवर का, कोलेरा, डाइसेंट्री और भी कई डिजीज हैं जिनके पैथोजन को ये कैरी करता है. थर्ड इज पैरासाइट, a plant or an animal that lives in or on another plant or animal and get its food from it are called parasite. पैरासाइट कोई प्लांट भी हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है. तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है, उसी की बॉडी से अपना खाना लेता है, उसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रिप्रोडक्शन करता है. जैसे कि एग्जांपल हो गया एस्चेरिशिया कोलाई, टेपवॉर्म, टेनिया सोलियम, लाइस. पैरासाइट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन होस्ट. पैरासाइट जो होता है वो अपने होस्ट से हमेशा छोटा होता है. फोर्थ इज होस्ट. होस्ट इज़ द ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स द पैरासाइट. होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर पैरासाइट रहता है, उसी की बॉडी से फूड लेता है, सब कुछ उसी की बॉडी के अंदर करता है, उसको हम होस्ट कहते हैं. Host is of two types, primary host and secondary host. Primary host is also called as definitive host or principal host. Primary host, in which parasite attains sexual maturity or in which the sexual phase of the life cycle is completed. Primary host वो होते हैं जिसके अंदर पैरासाइट सेक्सुअली मेच्योर होता है या पैरासाइट की सेक्सुअल फेज जो होती है लाइफ साइकिल की वो कंप्लीट होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट. एग्जांपल, इन केस ऑफ मोस्ट ह्यूमन पैरासाइट्स मैन इज़ द डेफिनेटिव होस्ट. मलेरियल पैरासाइट which is plasmodium and hydrated worm for which man act as intermediate host. ज़्यादातर ह्यूमन पैरासाइट के केस में जो मैन होता है वो डेफिनेटिव होस्ट होता है. Second is secondary host or intermediate host. Host in which larval stage of the parasite lives or the asexual multiplication takes place. Secondary host को हम intermediate host भी कहते हैं. Secondary host वो होता है जिसके अंदर पैरासाइट की लार्वल स्टेज रहती है या जिसमें asexual reproduction होता है, उसको बोलते हैं secondary host. Now let's move to our most important topic, that is disease. There are bacterial disease, fungal disease, protozoan disease, etc. Let me first tell you the name of disease one by one. First is typhoid, second tuberculosis, third pneumonia, fourth swine flu, 5 common cold, 6 malaria, 7 amoebiasis, 8 ascariasis, 9 filariasis, which is also called elephantiasis, 10 ringworm. Bacterial diseases. First is typhoid, second tuberculosis, third pneumonia. These diseases are caused by bacteria. Now let's start with our first disease, that is typhoid. Before going into our topic, which is typhoid, here are some basic terms with their definition and Hindi meanings. You must keep these terms in mind as these terms will come in our next slide or in our further video. First is incubation period, the period between exposure to an infection and the appearance of first symptoms.
जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है, उस टाइम से लेकर जब हमारी बॉडी में पहला सिम्टम्स दिखाता है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जैसे कोई मच्छर ने हमें काटा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने हमें काटा, उस टाइम से जब हमारी बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ये टाइम बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सेकंड इज़ सिम्टम्स। सिम्टम्स को हिंदी में लक्षण बोलते हैं। थर्ड फीवर, फीवर को हिंदी में बुखार कहते हैं। फोर्थ एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। 5 फ्रिक्वेंट स्टूल, बार बार मल आना, जिसको हम डायरिया बोलते हैं। 6 इज़ इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल मीन्स इंटेस्टाइन, परफोरेशन मीन्स हिंदी में जिसको छिद्र बोलते हैं। जब आंतों में छिद्र हो जाते हैं या होल हो जाते हैं, लूप होल हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल परफोरेशन। ये एक सिम्टम्स है, ये ज़्यादातर जो हैं ये सारे सिम्टम्स हैं। 7 इज़ सीवियर बॉडी पेन, शरीर में गंभीर दर्द। जब बॉडी में बहुत पेन होता है तो उसको बोलते हैं सीवियर बॉडी पेन। 8 इज़ वीकनेस, जब हमारी वीकनेस को बोलते हैं कमज़ोरी। 9 लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, जब हमारी भूख में कमी आ जाती है, खाने का मन नहीं करता है, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। 10 इज़ कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज़ बोलते हैं। 11 वैक्सीन, वैक्सीन को हिंदी में टीका बोलते हैं। जैसे बचपन में लगता था पोलियो का टीका, और जैसे अभी जो कोरोना वायरस चल रही है, इसके लिए साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, तो वो हो गया वैक्सीन। A vaccine is a substance that helps protect against certain diseases. Vaccine contain a dead or weakened version of a microbe. It helps your immune system recognize and destroy the living microbe during a future infection. तो जब हमें वैक्सीन दी जाती है तो वो जो वैक्सीन होता है उसमें डेड माइक्रोब्स होते हैं या वीकेंड माइक्रोब, जो माइक्रोब को बहुत वीक होते हैं, जिससे ज़्यादा हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारी बॉडी को। तो जब हमें वैक्सीन दी जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है। तो एंटीबॉडीज़ बनती है, वो उन माइक्रोब्स को, जो वैक्सीन डाली है उन माइक्रोब्स होते हैं उसमें, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना देता है। तो जब कभी फ्यूचर में वो इन्फेक्शन अगर आएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको आराम से मार देगा और हमें वो बीमारी नहीं होगी। तो इसी एक पूरे को हम प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। नाउ बैक टू आवर टॉपिक, टाइफॉइड। Typhoid Mary. It is a classic case of medicine. Mary Mallon was a cook by profession and was a typhoid carrier. She continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. मैरी मेलन एक लेडी का नाम है जो प्रोफेशन से एक कुक थी और एक टाइफाइड कैरियर। इस लेडी ने टाइफाइड को कई सालों तक फैलाया, जानबूझ के नहीं फैलाया। मतलब जो खाना बनाती थी तो उसके यहाँ लोग खाना खाने आते थे, तो उससे वो टाइफाइड फैलता गया। वो सिर्फ कैरियर थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइफाइड से। वो सिर्फ एक लेडी जो थी मैरी मेलन, वो एक टाइफाइड कैरियर थी, और इसी की वजह से इसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, क्योंकि इसने टाइफाइड को फैलाया कई सालों तक। पैथोजन, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टाइफाइड इज सैल्मोनेला टाइफी। दिस डिजीज इज कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 1 to 15। अब टाइफाइड का जो पैथोजन है वो है सैल्मोनेला टाइफी, और ये डिजीज़ कॉमन होती है 1 to 15 एज के बच्चों में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, through food and water contaminated with the feces of patient. Houseflies carry pathogen from feces to food, milk and water. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है। तो जो मक्खियाँ होती है, हाउस फ्लाइज होती है, ये पैथोजन को पेशेंट के फीसिस से, या जिसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, ह्यूमन वेस्ट बोलते हैं जिसको, ये मक्खियाँ ह्यूमन वेस्ट से पैथोजन को कैरी करके हमारे फूड में, हमारे पानी में लेके आती है। तो अगर किसी ने उस पानी को, फूड को खा लिया तो उसको टाइफाइड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इट वेरीज फ्रॉम 1 to 3 वीक्स। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से
3 हफ्ते का होता है। सिम्टम्स हाई फीवर बट पल्स रेट इज़ लो, बुखार होता है। पेशेंट फील्स एब्डोमिनल पेन एंड पासेस फ्रिक्वेंट स्टूल, पेशेंट के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो बार बार वॉशरूम जाता है। इन सर्टेन केसेस देयर कैन बी इंटेस्टिनल परफोरेशन, जो उसकी इंटेस्टाइन होती है उसमें परफोरेशन हो सकती है, छिद्र हो सकते हैं। हिंदी में परफोरेशन को छिद्र बोलते हैं। छेद या डैमेज हो सकती है उसकी इंटेस्टाइन। सीवियर बॉडी पेन, बॉडी में काफ़ी पेन होता है। वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है। वाइडल टेस्ट, टाइफाइड फीवर कैन बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए वाइडल टेस्ट कराया जाता है। कंट्रोल, द पेशेंट इज़ ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स सच एज टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन एंड एम्पिसिलिन। टाइफाइड फीवर को कंट्रोल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दवाई दी जाती है, जैसे कि टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन एंड एम्पिसिलिन। अब जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक, उसका नाम था पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। ठीक है। नाउ कम्स टू टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन आर एप्लीबल, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर अबाउट 3 ईयर्स। टाइफाइड वैक्सीन जो है अवेलेबल हैं वो, और ये हमारी हमको 3 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इन वैक्सीन से हमें 3 साल तक इम्यूनिटी मिल जाती है। I will cover the remaining diseases in my upcoming videos. Now comes to quiz. This quiz is for you. You have to complete this quiz and write their answers in comment section. ये क्विज़ आप लोगों के लिए है। इस क्विज़ को आप लोग सॉल्व करोगे और इसके आंसर जो हैं आप कमेंट सेक्शन पे दे देना। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। ए, सैल्मोनेला टाइफी ऑब्लिक वाइडल टेस्ट। बी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऑब्लिक यूटीआई टेस्ट। सी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए ऑब्लिक वाइडल टेस्ट। डी, सैल्मोनेला टाइफी ऑब्लिक एंथ्रोने टेस्ट। Second, which one of the following a property of cancerous cells, whereas the remaining 3 are? A, they compete with normal cells for vital nutrients. B, they do not remain confined in the area of formation. C, they divide in an uncontrolled manner. D, they show contact inhibition. Third, ringworm in humans is caused by A, bacteria, B, fungi, C, nematodes, D, viruses. Fourth, the infective stage of malarial parasite Plasmodium that enters human body is A, merozoite, B, sporozoite, C, trophozoite, D, minutiform. Fifth, what is the most infectious disease? A, hepatitis B, B, AIDS, C, cough and cold, D, malaria. आपको इन क्विज़ के आंसर इस तरीके से लिखने हैं। अगर फर्स्ट का बी है तो 1 बी लिख देना। ऐसी तरीके से आपको सारे आंसर लिखने हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। हमारी जो अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे।